बच्चों, आज हम आपको गौतम बुद्ध, लॉर्ड बुद्ध, महात्मा बुद्ध नामक पाठ का अध्ययन कराएंगे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 वर्ष पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु नगर के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। It is believed that Gautam was born in 563 BC. BC means Isa, at Lumbini near Kapilvastu in modern Nepal. उनका प्यार का नाम सिद्धार्थ तथा पारिवारिक नाम गौतम था। His own name was Siddharth and Gautam was his family name. उनके पिता शुद्धोधन शाक्य जाति के शासक थे। His father Suddhodhan was the ruler of a tribe called the Shakya. वह एक वीर योद्धा थे और उनके जन्म के बाद उनकी माँ चाहती थी कि उनका पुत्र भी उनकी तरह योद्धा बने। He was a brave warrior and wished his only son, whose mother Maya had died soon after his birth, to be a warrior like himself. उनकी माँ माया उनके जन्म के तुरंत बाद स्वर्ग से धार गई। गौतम का विवाह यशोधरा नाम की एक सुंदर राजकुमारी से हुआ। उससे उनका एक पुत्र हुआ। गौतम was married to a very beautiful princess named Yasodhara and had a son by her. सिद्धार्थ सदैव ही एक विचार मग्न बालक रहा था। वह मृदुभाषी, दयालु हृदय और सभी प्राणियों के लिए दया से भरा हुआ था। सिद्धार्थ had always been a thoughtful boy. He was gentle in his speech, had a kind heart, and was full of mercy to all living beings. एक बसंत ऋतु में एक दिन सवारी करके वह सुंदर खेतों को देखने के लिए महल से बाहर निकला। One day in the spring season he went out of the palace for a ride to look at the beautiful fields. जब वह धीरे धीरे सवारी करके बागों और कुओं, हरी घास और खेत और फलों से लदे रास्तों के बीच से गुजरा तो वह खुशी से भर गया। As he rode slowly through the land full of gardens and bells, green grass and fields and trees laden with fruits, he was filled with joy. कुछ समय बाद उसने एक खेतिहर को कमजोर बैल के साथ देखा। After some time, he saw a plowman driving along a poor bullock and beating it with a stick to make it go till it nearly dropped down, groaning with pain. वह उसे आगे बढ़ने के लिए तब तक पीटता रहा और खदेड़ता रहा जब तक कि वह पीड़ा से नीचे नहीं गिर गया। अतः राजकुमार दुखी होकर वापस लौट आया। So he sadly came back home. कुछ समय बाद उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा जो चलने में असमर्थ था। Sometimes after this
he saw a very old man who was too weak to walk. उसके बाद उसने एक बीमार व्यक्ति को पीड़ा से कराहते हुए देखा. Then he saw a man who was very ill and was groaning with pain. अंत में उसने एक आदमी को स्थिर, शांत और मरा हुआ पड़ा देखा. Lastly, he saw a man lying on the ground, all stiff and cold and dead. इन दृश्यों ने उसके अंदर दर्द भर दिया. This sight filled him with great sorrow. और उसने महसूस किया कि उसके भीतर से कोई आवाज कह रही है, सिद्धार्थ, एक दिन तुम भी बीमार होकर पीड़ा से कराहोगे, बूढ़े और कमजोर होगे और मर जाओगे. Lastly, he saw a man lying on the ground, all stiff and cold and dead. These sights filled him with great sorrow, and he felt as if a voice came out from within and said to him, Siddharth, one day you too will get ill and groan with pain and get old and weak and die. सिद्धार्थ दुखी, गंभीर और बेचैन हो गया. सिद्धार्थ became sad and serious. वह लंबे समय तक विचारों में डूबा रहा. अंत में वह निष्कर्ष पर पहुंचा कि संसार दुख और कष्टों का घर है. At last he concluded that the world was a house of sorrow and suffering. एक रात्रि जब उसकी पत्नी और उसका पुत्र सो रहे थे, one night when his wife and his son were fast asleep, उसने महल छोड़ दिया. He left palace. उसके बाद उसने वनों और पहाड़ियों में यह सोचने के लिए 7 वर्ष बिताए कि किस प्रकार संसार के दुख, दर्द और पापों को रोका जा सकता है तथा कम किया जा सकता है. He passed 7 long years in forest and hills trying to think of some way by which he might stop or at least lessen the pain, the sin and the sorrow he saw all around him in the world. एक दिन मध्यरात्रि में जब आधुनिक बिहार में गया नामक स्थान पर पीपल के पेड़ के नीचे गहरे विचारों में डूबा हुआ था, तो अचानक उसे समाधि की अवस्था प्राप्त हो गई और ज्ञान प्राप्त हो गया. He left the palace. He passed 7 long years in forest and hills, trying to think of some way by which he might stop or at least lessen the pain, the sin, and the sorrow he saw all around him in the world. At last, one day, soon after midnight, when he was sitting lost in deep thought under a peepal tree at Gaya in modern Bihar, he fell into a trance for a while and got enlightenment, and all his
doubts were gone, he felt that he had become Buddha, the enlightened one. Later on, the people tree under which he got enlightenment, he was called the Bodhi tree, which means the tree of enlightenment and wisdom. उसके सारे संदेह दूर हो गए। उसे महसूस हुआ कि वह बुद्ध हो गया, अर्थात आत्मज्ञानी। बुद्ध मीन्स आत्मज्ञानी। जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उसे बाद में बोधि वृक्ष कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है ज्ञान का वृक्ष। Then he left the woods and came back into the world. इसके बाद उन्होंने जंगल छोड़ दिया and came back into the world, और संसार में वापस आए। Preach his religion, धर्म का प्रचार प्रसार किया। He gave his first sermon to 5 disciples at सारनाथ नियर बनारस। उन्होंने बनारस के पास सारनाथ में 5 शिष्यों को अपना संदेश सुनाया। Which was called वाराणसी these days। बहुत से लोग उनके अनुयायी बन गए। Many men followed him, कई लोगों ने उनका अनुसरण किया। उनके जीवन काल में लाखों हिंदू उनके शिष्य बन गए। And even in his lifetime, lakhs of Hindus became his disciples। 600 वर्ष से बौद्ध धर्म को भारत का प्रमुख धर्म माना जाता है। Hundreds of years after his death, the Buddhists began to worship him as a god, and a great many images of him were set up at various places। उनके जीवन काल में लाखों हिंदू उनके शिष्य बन गए। 600 वर्ष से गौतम बौद्ध धर्म को भारत का प्रमुख धर्म माना जाता था। उनकी मृत्यु के सैकड़ों वर्ष बाद बौद्ध उन्हें पूजने लगे और विभिन्न स्थानों पर उनकी बड़ी संख्या में मूर्तियां लगाई जाने लगी। ये देखो, इधर गौतम बुद्ध बैठे हैं, ये उनके अनुयायी बैठे हैं, सुन रहे हैं उनकी स्पीच को। महात्मा बुद्ध संसार में निवास करने वाले अत्यधिक दयालु व्यक्तियों में से एक थे। महात्मा बुद्ध वाज वन ऑफ द काइंडेस्ट मैन हु एवर लिव्ड। उन्होंने लोगों को शिक्षा दी कि सभी प्राणियों के प्रति दयालु और नेक होना चाहिए। He taught people that it was their duty to be good and kind to all living beings, and that it was a sin to be cruel or to hurt any one of them। He said that all men were both free and equal in the sight of God। उन्होंने लोगों को शिक्षा दी कि सभी प्राणियों के प्रति दयालु और नेक होना चाहिए। किसी के प्रति निर्दयी होना तथा किसी को कष्ट पहुंचाना पाप है। ईश्वर की दृष्टि में सब बराबर और स्वस्थ हैं। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू। इधर देखो, माता यानी अपनी वाइफ और बच्चे को छोड़कर ये गौतम बुद्ध चल दिए हैं। इधर जाके इन्होंने इस वृक्ष के नीचे तपस्या की और ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ इनने लोगों को उपदेश दिए हैं। उन्होंने कहा, जीव हत्या पाप है, किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए। जिस तरह हमारी फैमिली होती है
उसी तरह उनकी भी फैमिली होती है, उनकी भी दुनिया होती है। इसीलिए सभी जीवों पर दया करो। जीव हत्या पाप है। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।